Good morning, children. Today we will start with a new topic, that is cytoskeleton. Okay, children, cytoskeleton is a network of filamentous proteinaceous structures that are present in the cytoplasm. ठीक है, filamentous प्रोटीन से बने हुए structures जो cytoplasm में present होते हैं, okay, and which forms the network like structure is called the cytoskeleton, and its function is to provide mechanical support. ठीक है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा. इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, राइट, इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. सो दिस आर द फंक्शंस, राइट. जो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो नेटवर्क बनाता है साइटोप्लाज्म में, उसे कहते हैं साइटोस्केलेटन. ओके, और साइटोस्केलेटन का फंक्शन है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. दूसरा है इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, एंड थर्ड इज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप इन द सेल. Okay, so that are the functions of cytoskeleton. Now we will study about cilia and flagella. Children, cilia and flagella are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cell membrane में से hair-like outgrowth जो होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं cilia या फिर flagella. दोनों का फंक्शन है इट हेल्प्स इन मोटिलिटी. सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में वो हेल्प करता है. ओके, नाउ व्हाट आर सीलिया? सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स. बोट में होता है ना, बोट चलाने के लिए वो ओट्स का हम यूज करते हैं, ओर्स का. वैसे ही सीलिया आर द स्ट्रक्चर्स विच वर्क्स लाइक ओर्स. Okay, and they cause the movement of the cell और surrounding fluid. तो वो जब मूव करेंगे, ठीक है, उसका एक जब डेफिनेट मूवमेंट होगा सीलिया का, so with the help of that either the cell can move or the surrounding fluid will move. Okay, and flagella are longer than cilia. They are responsible for cell movement. ठीक है, flagella are responsible for the movement of the cell, and flagella of prokaryotes and eukaryotes are structurally different. दोनों में जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फ्लैजेला है उनका स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट है, अलग नहीं, वो है सॉरी so cilia are small as compared to that of flagella, right? Cilia works like oars which helps in movement of the cell or it moves the surrounding fluid, right? And flagella are longer, right? And they are responsible for the movement of the cell, and the structure of the prokaryotic and eukaryotic flagella is different. Cilium or flagellum. Children, cilium is singular, flagellum is singular. Cilia plural, flagella plural. Okay. Cilium and flagellum are covered with plasma membrane. ठीक है, cilia और flagella के पास एक कवरिंग होता है, that is plasma membrane. Their core means जो सेंटर का पार्ट है, ठीक है, मेम्ब्रेन का अंदर का जो पार्ट है दैट इज कोर. ओके, सो देयर कोर विच इज कॉल्ड एक्सोनेमा हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस. ठीक है, कोर में क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके कोर में, उसके सेंटर में क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है. ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये जो लॉन्ग एक्सिस होगा उसमें देखोगे देन इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, एक्सोनेमा
9 pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of central microtubules. This is called 9+2 array. ठीक है, अब एक्सोनेमी में क्या है? 9 pairs of doublets of radially arranged peripheral tubules. तो यहाँ देखो doublets में 9 pairs है and this are called peripheral microtubules. Okay, इसे क्या कहेंगे? Peripheral microtubules. And there is a pair of central microtubules. सेंटर में एक पेयर होता है of microtubule. तो 9+2. So it is called 9+2 array. Okay, I hope this is clear to everyone. Now we will study about cilia and flagella. The central tubules are connected by bridges and are enclosed by a central sheet. Okay, ये जो central tubules है, this one, they are connected by bridge. यहाँ दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है यहाँ पे. Okay, तो ये जो लाइन है, right, that is the central bridge which connects the central tubules, and this central microtubules are covered by the sheet, or they are enclosed in the sheet which is called central sheet. इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल शीट. ठीक है ना. तो ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको कनेक्ट करता हुआ ब्रिज है, और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको एनक्लोज करता है एक शीट जिसे कहते हैं सेंट्रल शीट. और ये जो सेंट्रल शीट है, इन टर्न इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक. ठीक है ना. तो ये डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उसमें से जो एक ट्यूब्यूल है वो अटैच होगा यहाँ पर सेंट्रल शीट के साथ, और जो कनेक्टिंग पार्ट है उसे कहेंगे रेडियल स्पोक. ठीक है. तो ये देखो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है, दिस इज रेडियल स्पोक विच कनेक्ट्स वन ट्यूब्यूल. एक ही ट्यूब्यूल पे ये रेडियल स्पोक है, दोनों ट्यूब्यूल्स पे नहीं होगा. तो जो पेरिफेरल डबलेट का एक ट्यूब्यूल है उस पे रेडियल स्पोक होगा, जिससे वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंट्रल शीट के साथ कनेक्टेड होंगे. ओके, सो देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 9 radial spokes are there which connects the peripheral tubules to the central sheet. Okay, the peripheral doublets are also interconnected by linkers. अब ये जो peripheral doublets है, जैसे ये है, these are peripheral doublets, तो वो भी एक दूसरे से interconnected है. Okay, and they are interconnected with each other by linkers. ये दिख रहा है व्हाइट कलर के छोटे छोटे सर्कल्स, they are linkers which connects the peripheral doublets. Okay, cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure which are called the basal bodies. ठीक है. और ये जो cilia और flagella है वो किस में से बाहर निकलते हैं? They come out of, or they emerge out from the basal bodies. These basal bodies are similar to that of the centrioles. Okay. Now we will study about centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle containing two non-membrane bound cylindrical structures which are called centrioles. Centrosome एक organelle है, cell organelle, जो किससे बना है? It is formed of two non-membrane bound structure, and that structures are called centrioles, right? And they are surrounded by pericentriolar materials. Okay, centrosomes are surrounded by pericentriolar materials, right? And the centrioles, they lie perpendicular to each other. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. ठीक है. यहाँ पर देखो ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है. ठीक है.
और ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स से बने हुए हैं, राइट, एंड दिस पेरिफेरल फाइब्रिल्स आर ऑफ ट्यूब्यूलिन एंड दे आर इवनली स्पेस्ड विथ ईच अदर, ठीक है। जब 9 ट्यूब्यूल्स हैं, पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं जो ट्यूब्यूलिन से बने हैं, दे आर इवनली स्पेस्ड, सब के बीच में की जो जगह है वो सेम है, ओके, एंड ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। अब हम अगर एक की बात करें, एक पेरिफेरल फाइब्रिल, तो वो ट्रिपलेट है, ठीक है। तो 9 ऐसे पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, राइट, एंड ईच पेरिफेरल fibril is a triplet, okay, and these triplets are linked with each other, they are connected with each other, okay. Now the central part of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of proteins, ठीक है। जैसे हमने वो सीलिया और फ्लैजिला में पढ़ा कि सेंट्रल पार्ट होता है, राइट, सिमिलरली हियर ऑल्सो सेंट्रियोल्स ऑल्सो हैव द सेंट्रल पार्ट, ओके, विच इज प्रोटीनेशियस एंड इट इज कॉल्ड हब। जो सेंट्रल पार्ट है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हब, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by the radial spokes, ठीक है। पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के साथ वो अटैच होते हैं एंड अगेन द अटैचमेंट और लिंकिंग इज विद द हेल्प ऑफ द spokes which are made up of proteins. The centrioles form the basal body of cilia और flagella, ठीक है। अब हमने आगे पढ़ा कि सीलिया और फ्लैजिला जो है वो इमर्ज होते हैं बेजल बॉडी में से, और ये बेजल बॉडी किस में से बनता है? सेंट्रियोल्स में से बनता है, ओके। सो द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेजल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसके पोल्स पे सेंट्रियोल्स होते हैं और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। दिस स्पिंडल फाइबर्स दे आर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स, राइट। सो centrioles they form basal body of the cilia and flagella, and the spindle fibers that will give rise to the spindle apparatus during the division of the cell in the animal cells, not in the plant cells. Why? Because centrioles are present only in the animal cells, they are not present in the plant cells, right? Then about nucleus. Nucleus was first described by Robert Brown in the year 1831. ये भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से साल में? 1831 में, ओके। एंड द मटीरियल ऑफ द न्यूक्लियस stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, क्रोमेटिन नाम दिया गया था, और ये नाम दिया था फ्लेमिंग ने। तो वो बेसिक डाई से स्टेन हो जाता था, मीन्स वो कलर बेसिक डाई लेता था, ठीक है। नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस, some cells have more than one, some mature cells lack nucleus, example mammalian RBC and sieve tube cells of vascular plants, ठीक है। तो सेल्स, नॉर्मली सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हमें 2 या फिर 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ओके। And in some of the mature cells the nucleus may be absent, okay. The cells, mature cells may lack the nucleus. Example जो RBCs है, mammals के RBCs, they are non-nucleated, they do not have nucleus, ठीक है। फिर जो sieve tubes हैं उनके पास भी खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है।
जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है वही सिव ट्यूब्स को गार्ड करते हैं अपना फंक्शन करने में. ओके, सो सम ऑफ द मैच्योर सेल्स दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, बट जनरली द सेल्स हैव ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस, राइट. देन द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन्स, जब सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो पहला फेज होता है इंटरफेस, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए. ओके, सो द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो वैसे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज न्यूक्लियर सराउंडिंग. इट हैज न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. इट हैज क्रोमैटिन, जिसमें से फिर कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन का और क्रोमोसोम्स बनते हैं, राइट. एंड इट हैज न्यूक्लियोलस, राइट. दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleoplasm, chromatin and the nucleolus. Okay, now if we talk of the nuclear membrane, nuclear membrane is double layered membrane with a space between them. Okay, and that space is called perinuclear space. न्यूक्लियर के सराउंडिंग में जो दो मेम्ब्रेन है दैट हैज टू लेयर्स, ठीक है, और दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस होता है, वो स्पेस को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ओके, नाउ दिस एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये जो एनवेलप है वो एक बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. Outer membrane usually continuous with the ER and also bears ribosomes on it. ठीक है, जो न्यूक्लियस का बाहर का मेम्ब्रेन है it is continuous with the endoplasmic reticulum and it also have the ribosomes. Okay, nuclear envelope has minute pores formed by the fusion of two membranes. These are the passages for the movement of RNA and proteins between nucleus and cytoplasm. अब न्यूक्लियस के एनवेलप में पोर्स होते हैं, ठीक है, और वो पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जो दो मेम्ब्रेन है, दो लेयर्स है न्यूक्लियस के, दैट विल फ्यूज विथ ईच अदर एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ पोर, राइट. सो दैट पोर्स विल देन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स लाइक RNA and proteins between the nucleus and the cytoplasm. Okay, now we will talk about chromatin. It is a network of nucleoprotein fibers. Chromatin क्या है? It is the network of nucleoprotein fibers. It contains DNA and the basic proteins which are called histones. ठीक है, हिस्टोन्स क्या है, एक प्रोटीन्स है, बेसिक प्रोटीन्स हैं. ओके, ये बेसिक प्रोटीन्स जो है वो DNA को रैप करने में हेल्प करेगा, क्योंकि DNA तो बहुत लंबे साइज के होते हैं, उसको एक छोटे से न्यूक्लियस में जो सेल के अंदर होते हैं उसमें एडजस्ट करना है, उसमें अकोमोडेट करना है. So for that the histone proteins are there, some non-histone proteins are there and RNA is also there in the chromatin material. During cell division, chromatins condense to form the chromosomes. जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाएगा. ओके, now let us see about nucleolus. One or more non-membrane spherical bodies which are present inside the nucleus are called nucleolus. It is continuous with the nucleoplasm. nucleoplasm में
साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं. It is a site for ribosomal RNA synthesis. न्यूक्लियोलस में RNA synthesis होता है. Ribosomal RNA synthesis takes place in the nucleolus of the nucleus, right? And then chromosomes. Children, about chromosomes we will be learning in our next video. I hope today's topics are clear to everyone. Thank you.